Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, and this is hydrogen. ठीक है, तो हाइड्रोजन में हम लोग पढ़ेंगे isotopes of hydrogen, position of hydrogen, and preparation of hydrogen, and some compounds formed by the hydrogen, its properties, physical and chemical properties, and after that we will discuss about the characteristics of its compound. Okay, चलो शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोजन. Introduction of hydrogen. It is the most important gas on in universe. ठीक है, और इसके कुछ आइसोटोप्स होते हैं. If we talk about the electronic configuration of hydrogen, 1s1, atomic number 1h1, and its isotopes, there are 3 isotopes of hydrogen. There are 3 isotopes of hydrogen gas. ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो एक चीज इसकी जानकारी के लिए. Found in molecular form in the nature. It exists in molecular form, not in atomic form. There are 3 isotopes of hydrogen. That is, first is 1H1. 1H1, that is known as protium. Indicated by P, and it is found in the nature as approx 99.985% in the universe. Okay. Second isotope is 1H2. 1H2, that is deuterium. It is indicated by D, and it is found in the nature as 0.0156% approx. प्रोटियम इज फाउंड 99.985%. ये H के फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, 1H1 को हम क्या कहते हैं? प्रोटियम, indicated by P, and it exists about 99.985% in the universe. And our third isotope is not our isotope of hydrogen, it is 1H3, that is tritium, indicated by T, and it is found in the nature about 10 to the power minus 15%. Is that means सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? प्रोटियम, दिस वन. अब इसकी और ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ ये क्या होता है? वेरी स्मॉल. और इस वेरी स्मॉल है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? बॉन्ड एनर्जी is very high.
वहीं अगर बात करें हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ इज larger than large in compare of 1H1. Is that in compare of hydrogen, deuterium has large bond length. So bond energy की अगर बात करें, bond energy is less comparatively. बताओ इन दोनों में हाइड्रोजन के बीच में अगर इसका बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका साइज क्या है, छोटा, स्मॉल साइज होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्मॉल, बॉन्ड एनर्जी हाई means we should put here too much energy to break this bond. अगर इसका रिएक्शन कराना होगा तो इसके लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड ड्यू टू हाई एनर्जी we can say that reactivity less, और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई. Why? Because its bond energy is comparatively less. इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे क्या है, लेस मतलब small amount of energy if we applied on HD bond, then it will be break easily, so it can react very easily than hydrogen bond. Is that we know that hydrogen bond is weaker bond, but in case of other elements, in case of hydrogen and hydrogen, it will be very high. Is that clear? Copy it now and we will move on other parts. Now, position of hydrogen. तो सारी चीजें इसमें रटने की जरूरत नहीं होगी. आप क्या करोगे, जिन चीजों की मोस्ट इंपॉर्टेंस होगी मैं उसे इंडिकेट कर दूंगा, उसे आप याद करते जाओगे. हाँ, एक चीज है कि इसकी अकरेंस पूछ ली जाती है. कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि which isotope of hydrogen is found mostly in the universe, then your answer will be protium. 1H1 is found 99.985% in the universe, so your answer will be protium. Okay. Okay, such type of questions will be created here. Now we have to discuss about the position of hydrogen gas. देखो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी रिसेंबल करती है, और अगर बात करें हेलोजन की तो हेलोजन से भी रिसेंबल करती है. So the position of hydrogen is not fixed in the periodic table. Why? Because the property of hydrogen is resemble with halogen as well as alkali metal also. How? Let's see here. We can write here the position of hydrogen gas is not fixed in the periodic table. Why? Because its property
is resembled with halo alkali metal as well as halogens. ओके देखो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. ओके, इट्स properties resemble with alkali metal as well as halogens. So its position is not fixed. How? alkali metal के केस में अगर हम देखें तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चेक देखो, if we talk about any alkali metal like lithium 3 1s1 1s2 2s1 means what? ns1 को फॉलो कर रहा है. if we talk about sodium 11 1s2 2s2 2p6 2p6 and 3s1, ये भी क्या शो कर रहा है? 1s1 को शो कर रहा है. is that same as if we talk about hydrogen 1 and 1 1s1, ये भी ns1 को शो करता है. means what? the property of hydrogen in case of electronic configuration is completely resemble with alkali metal. क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट कहता है कि हाइड्रोजन can form same type of ions as alkali metal form. means what? कि देखो इस पॉइंट्स को अगर कंसीडर करो, तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ आयंस एज अल्कली मेटल फॉर्म. लुक, सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये क्या बनाता है? Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस. ठीक है, इज दैट सेम एज हाइड्रोजन भी क्या बनाता है? H प्लस आयन बनाता है. मीन्स सोडियम की तरह ये भी क्या बना सकता है? आयन बना सकता है. on this basis we can say that its properties resemble with alkali metal. now same category will be here with halogen. in case of halogen के केस में क्या होगा? देखो, H halogen, the tendency to gain or accept the electron to achieve their nearest inert gas configuration. जिस तरह से हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट को गेन करने की, लाइक हाइड्रोजन में ले लो क्लोरीन 17 1s2 सॉरी क्लोरीन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन
and it forms Cl minus, same as hydrogen can gain one electron and form H2। मतलब व्हाट कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को H2 मत लिखो, आप क्या लिख सकते हो, देखो वन इलेक्ट्रॉन गेन करने के पास इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 18, मींस व्हाट कि 1s2 2s2 2p6 and 3s 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। अब यहां से ये क्या हो जाता है स्टेबल, ठीक है, या आप इसको लिखते हो 288, ये स्टेबल हो गया। कब, जब ये माइनस चार्ज इस पर आ गया, after gaining the electron it has one minus charge and it one more electron here, hence it will be complete its octet। same as hydrogen, हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये भी क्या करता है, एक H आयन इस पर भी आ जाता है और ये किस तरह से 1s2 की तरह हीलियम की तरह अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है, मींस आयनाइड गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये भी अचीव कर लेता है। आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट अचीव द electronic configuration of nearest ionized gas, is that so its property is resemble with halogens also। now our second point is, देखो इसका सेकंड पॉइंट है halogen has the tendency to accept and donate to accept the electron only, but hydrogen has the tendency to accept as well as donate also। यहां पर ये डिफर करता है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ओनली बट हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एंड डोनेट आल्सो। मींस व्हाट कि इसकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ना तो कंप्लीटली हाइड्रोजन से मिलती है ना ही कंप्लीटली अल्कली मेटल से मिलती है। सो वी कैन नॉट पुट द हाइड्रोजन ऑन अ फिक्स्ड पोजीशन, ना तो हम इसको अल्कली मेटल की तरफ रख सकते हैं ना ही हम इसको हाइड्रोजन की तरफ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी इसकी अल्कली मेटल से मिलती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती है, ना तो इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती है ना ही इसकी कंप्लीटली प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से मिलती है। सो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। दैट क्लियर? कॉपी इट नाउ, वी विल मूव नाउ। हाँ, एक चीज और इसमें, एक चीज देखो, क्लोरीन आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, क्लोराइड। मतलब कोई भी हैलोजन, अगर बात करें हम हैलोजन की तो थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है, चलो यहां लिख लेते हैं। हैलोजन मींस हैलोजन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हैलाइड, सेम एज हाइड्रोजन accept the electron and form halide, not halide but hydride। ठीक है, जिस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद हैलाइड बनाता है, जैसे सोडियम से अगर क्लोरीन रिएक्शन करता है तो सोडियम से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड मींस मेटेलिक हैलाइड। इज दैट सेम एज hydrogen can accept the electron from the metal and form respective hydride। like if we consider about the sodium, from sodium it accept one electron, sodium has the tendency to donate the electron, sodium क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है।
एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उस पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जो सोडियम के द्वारा दिया गया होगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। इज दैट? कॉपी इट नाउ। One more point you have to add in compare of halogen. Inside of halogen you have to write, क्या लिखोगे, as sorry hydrogen exists in diatomic form as halogen। ठीक है, हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर बात करें हम किसकी, फ्लोरीन F2 Cl2 Br2 I2 such as H2। ओके, मींस हाइड्रोजन भी क्या करता है, इनकी तरह डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इट्स प्रॉपर्टी इज रिसेम्बल विथ halogens। okay, now we are going to discuss how preparation of hydrogen gas देखो ये सब पूछा नहीं जाएगा कभी भी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से रिसेंबल करती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसकी अल्कली मेटल से रिसेंबल करती है। हाँ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है। मान लो आपसे किसी ने कभी भी पूछ दिया कि आप साइंस पढ़ते हो, हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक फिक्स क्यों नहीं है, तो आप वहां पर ये दे सकते हो कि ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी डज नॉट resemble only with alkali metal or with halogens or inert gas or any other gases. Its property is resemble with alkali metal as well as halogen also, but all properties does not exist. Okay, so its position is not fixed. Now preparation of hydrogen gas। तो हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, तो इसके लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है लेबोरेटरी मेथड और सेकंड अपना होता है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, तो ये दो तरह के हमारे पास मेथड होते हैं जिससे हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, लिखते चलते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड by the action of mineral acid on metal। किसी मेटल पर अगर आप मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं कौन कौन बताओ, नहीं पता, चलो जान लो। मिनरल एसिड होते हैं HCl H2SO4 HNO3, ये सब क्या है, मिनरल एसिड हैं। व्हाई?
because it does not found in nature in this form. It is found in laboratory also. So it is known as mineral acid. इसमें कहीं कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन होता है आप उसको कह देते हो ऑर्गेनिक एसिड, या आप उसको कह देते हो, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन एसिड, या फिर आप उसको कह सकते हो कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ बात आती है मिनरल एसिड की। हाइड्रोजन कैन प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड ऑन मेटल लाइक फर्स्ट जिंक। जिंक सॉलिड का रिएक्शन अगर HCl अक्वस स्टेट में कराते हो तो बताओ क्या बन जाता है, ZnCl बन जाता है, ठीक है, और ZnCl2 प्लस H2 गैस, रिएक्शन बैलेंस कर लो 2HCl। इज दैट सेम एज अगर सेकेंड प्रिपरेशन की आप बात करो तो सेकेंड प्रिपरेशन क्या होता है, इसमें देखो ये एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। कोई भी मेटल्स, जैसे सेकेंड में अगर मैं बात करूं तो एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल reacts with alkali to form H2 gas. एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं, those metal which can react with acid as well as base। आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो, हम लोग डिस्कस किए हैं इसे, एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट विथ अल्कली टू फॉर्म H2 गैस लाइक Zn solid plus NaOH in aqueous state it form Na2ZnO2 plus H2 gas। Is that in aqueous आप बैलेंस कर लो 2NaOH, 2 sodium, zinc, oxygen 2 and hydrogen gas is there। Okay, its name is sodium zincate। Okay, copy it fast। Like aluminium solid reacts with NaOH, how is it formed? NaLO2 2 3 aluminium, ठीक है, and then H2 gas। Is that ड्यू टू, हाँ, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, ड्यू टू all these metal can react with acid as well as base, it is known as amphoteric। Is that एल्यूमिनियम भी एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, एम्फोटेरिक कह सकता हूं। क्लियर है ना। जैसे मान लो
PV है लेट, PV सॉलिड रिएक्ट्स विथ NaOH, ये क्या बनाता है Na2PbO2 प्लस H2 गैस। इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम प्लम्बेट। ठीक है, मीन्स lead, aluminium and that zinc what you have written just before, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों बनाते हैं एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं as well as it can react with base also, so it is known as amphoteric। तो इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। when metal react with acid, mineral acid, it can produce hydrogen gas। when amphoteric metal react with alkali and it form what hydrogen gas, but but in laboratory we can produce hydrogen gas in a small amount, if we have to produce in large amount we have to discuss about the commercial process or industrial process, is that clear? So we will discuss commercial and industrial process in next video, copy it now।